Hello everyone, welcome back to your own channel, the IAS Track. Well, let me say something very uncomfortable at the beginning of this video. It might affect you, but that's what it is. If in the next 50 days you're just focusing upon or trying to cover more sources, if you're just focusing upon the content accumulation, then you are reducing your chances of qualifying prelims 2026. And why I'm saying this is for the fact that UPSC 2025 prelims paper has already shown us one thing very clearly. And that is, prelims is not just about how much you study. Prelims is not just about the knowledge. It's about how much or how many revisions you have done before you enter the examination hall. How strategically you think in the examination hall. How well you apply the common sense in all the questions. And we'll see that today. देखिए ये जो particular discussion है, many of the students have been sending me messages. They are really confused at this point of time. It's not like that they haven't studied, they have studied enough, but they are not clear with how to proceed with in the coming 50 days. How to manage things and how to have that perspective as far as the questions are concerned. Let me be very frank. This video is for serious aspirants, first. Second, this is not going to be a Gyan type of video. For that, we already have many videos on the internet. Many people have come and talked about the 50 days strategy, tips and tricks to clear the examination. We are not going to talk about that. What we will talk about is a simple, straightforward, evidence-based plan. We'll look into the questions which have come in the UPSC 2025 paper, and we'll see what kind of perspective is needed. भाई mindset क्या होना चाहिए? If you are just focusing upon the knowledge, if you're just focusing upon covering the content, just reading the content, believe me, it's not going to help you. You'll have to develop a kind of an aptitude. You'll have to develop a kind of a mindset in order to clear the examination. And believe me, if you do that, if you apply some of that common sense in each and every question, you can easily qualify the prelims. 100%. One thing, please, in order to save your time, you can watch this video as at 1.25 or 1.5 speed. I don't want you guys to waste your time. Second, make sure that you watch this video till the end, because each and every question which we'll discuss has something in it, and it's really going to help you a lot. Third thing, please make sure that you share this video with the serious aspirants, and also you subscribe to the channel. Okay? So without wasting time, let's begin with the reality check. देखिए, if we look at the question paper of 2025, there are few things which I have analyzed. First of all, we had questions from almost each and every domain. From economy, we had almost 17 questions, environment and ecology almost 12 questions, geography almost 14 questions, history almost 16, comprising ancient, medieval and modern. Polity almost 13 questions, science and tech 14 questions, miscellaneous comprising international relations, society, government schemes almost 14 questions. तो कुछ चीज़ें हैं which we can summarize. There are few things which we can summarize. The very first thing which you'll have to understand is that the paper was not dominated. The paper was not dominated by a single subject. I have seen many students struggling with the fact, saying that, sir, my history is weak. Sir, my polity is weak. But my economy is good. But my science and tech is good. देखिए, अगर एक सब्जेक्ट आपका वीक है, प्लीज डू नॉट फील एंशियस अबाउट दैट. इट्स वेरी नेचुरल. वी ऑल हैव वन और टू सब्जेक्ट्स एज अवर वीकनेसेस एंड 2 or 3 सब्जेक्ट्स एज अवर स्ट्रेंथ्स. ठीक है, तो वहाँ पर कोई डरने की बात नहीं है. The paper is very balanced. It has questions from almost each and every domain. Nobody is asking you to score 180 or 150 in prelims. You just have to score somewhere which is decent above the margin. ठीक है. Second चीज़ क्या है? Almost 50 questions have been asked from the core subjects. By core, I mean to say polity, economy, history, geography. Polity, economy, history, geography. काफ़ी बार I have seen, many times I have seen students struggling with the fact that, sir, I'm not able to cope up with environment. Sir, environment समझ में नहीं आ रहा. Sir, international relations समझ में नहीं आ रहा.
अरे भाई ये बात की बात है, दीज आर इंटर डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स, बट बिफोर दैट मेक श्योर दैट यू गिव ड्यू इंपॉर्टेंस टू पॉलिटी, जोग्राफी, इकोनॉमी, हिस्ट्री. भाई यहाँ से तो सवाल आना ही आना है. क्वेश्चन वुड इनएविटेबली 100% come from these areas. So please make sure that core areas should not be neglected. आप कितना भी एडवांस हो जाए यूपीएससी, it would make sure that questions come from these domains because these are evergreen domains. Third thing which I have analyzed is that if you look at the kind of questions, you will see that the difficulty level of questions is moderate. लेकिन questions analytical है. By analytical what I mean? पहली बात ये है that questions are not direct. If you look at the questions, you will see that there is no question which is almost direct. Questions are based on statements. You have to basically read and understand the statements. And the third most important thing which I found out was that questions are based on your understanding of the statement. आपको भाई वहाँ पर statement को interpret करना पड़ेगा. And then using your knowledge, using your smartness, you will have to eliminate. ये देखो जो word है ना elimination, इसको बहुत गलत तरीके से लोग देखते हैं. Because आजकल क्या है ना कि हर कोई elimination technique tricks बता रहा है. Elimination का मतलब होता है कि भाई आप अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर, अपने knowledge के बेस पे you root out that statement which obviously looks incorrect. You eliminate that. And that is based on a certain level of understanding. एक और चीज़ मैं क्लियर कर दूं, दिस वीडियो इज़ फॉर दोज हु हैव स्टडीड. इट्स नॉट फॉर, डोंट थिंक कि भाई बिना पढ़े आपका एग्जाम निकल जाएगा, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है. अपना अटेम्प्ट ज़ाया मत करिए, वेस्ट मत करिए. मेक श्योर दैट यू फर्स्ट स्टडी एंड देन यू अपीयर. ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमको समझनी पड़ेंगी. लोग बोलते हैं कि भाई यूपीएससी बहुत अनप्रिडिक्टेबल है. आई एम टेलिंग यू वन थिंग, इफ़ यू जस्ट फोकस ऑन दीज थिंग्स विच आई एम टेलिंग यू, यू वुड फील दैट पेपर इज़ वेरी मच प्रिडिक्टेबल. भाई क्वेश्चंस तो आएंगे ना पॉलिटी से, ज्योग्राफी से, इकोनॉमी से, हिस्ट्री से. अब एनवायरनमेंट से हम कैसे कैसे देखना है, विल सी हाउ टू बेसिकली अप्रोच द क्वेश्चंस. माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है समझना. ठीक है, तो भाई लेट्स गो डीपर एंड सी व्हाट यूपीएससी इज एक्चुअली टेस्टिंग. क्या चाहता है यूपीएससी, व्हाट इट इज ट्राइंग टू असेस. फर्स्ट थिंग विच आई फील इज दैट फॉर यूपीएससी conceptual clarity is more important than information. You may go for n number of books. सर पॉलिटिकली लक्ष्मीकांत भी कर लिया, यू नो वी हैव डन डीडी बसु, वी हैव डन दैट. सी नंबर ऑफ सोर्सेज, howsoever, and this often I say that, howsoever good teacher you have, howsoever good mentor you have, if you are not restricting yourself with respect to the sources, and if you're not understanding that, if you're not giving importance to the revision and understanding, it's going to be very difficult. आपको समझना पड़ेगा दैट फॉर यूपीएससी कंसेप्चुअल क्लैरिटी इज फार मोर इंपॉर्टेंट दैन इन्फॉर्मेशन. कहीं भी आपको इस साल के क्वेश्चन पेपर में, 2025 के क्वेश्चन पेपर में, नो वेयर यू वुड सी दैट क्वेश्चंस आर ऑफ डायरेक्ट नेचर. लेट्स टॉक अबाउट द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन विद रिस्पेक्ट टू इकोनॉमी. इट सेज with reference to the investments, consider the following: bonds, hedge funds, stocks, venture capital. How many of the above are treated as alternative investment funds? बहुत सिंपल सी बात है भाई, यहाँ पर क्वेश्चन ये नहीं पूछ रहा कि ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स क्या होता है, या बॉन्ड्स क्या हैं, हेज फंड्स क्या होते हैं, स्टॉक्स क्या होते हैं. यहाँ अप्लाइड नॉलेज पूछी जा रही है. वेदर यू आर क्लियर विद दैट अंडर व्हाट कैटेगरी बॉन्ड्स कम. बहुत सिंपल सी बात है, अगर आपने बेसिक भी पढ़ा है इकोनॉमिक्स का, यू वुड नो दैट बॉन्ड्स एंड स्टॉक्स, दीज आर ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट. ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स एक नए तरीके के इन्वेस्टमेंट एरियाज हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं, वेर यू हैव द इन्वेस्टर्स पूलिंग मनी एंड देन दैट मनी गोज इन वेरियस डोमेन. इट इज़ इन्वेस्टेड इन वेरियस डोमेन. बॉन्ड्स जो है वो भाई डेट इंस्ट्रूमेंट है, ट्रेडिशनल डेट इंस्ट्रूमेंट. स्टॉक्स जो है ट्रेडिशनल इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है. हाँ, हेज फंड्स एंड वेंचर कैपिटल फंड्स, देखा होगा ना भाई, नई नई कंपनीज को वेंचर कैपिटल चाहिए होता है, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स. And these are under the overall jurisdiction of SEBI, Securities and Exchange Board of India. तो यहाँ पे मुझे आप ये बताओ, क्या इन्फॉर्मेशन से सवाल निकल पाएगा? नहीं. कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है. दूसरा क्वेश्चन देखते हैं. द सेकेंड क्वेश्चन सेज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सोर्सेज ऑफ इनकम फॉर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? बाइंग एंड सेलिंग of government bonds, buying and selling of foreign currency, pension fund management, lending to private companies,
प्रिंटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग करेंसी नोट्स। ओके, देखो भाई यहाँ पर वो आरबीआई का फंक्शन नहीं पूछ रहा है आपसे। क्वेश्चन इज आस्किंग दैट टेल अस दैट व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ इनकम फॉर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इतना मुझे पता है कि भाई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्लेज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल एज फार एज द ओवरऑल मैनेजमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इज कंसर्न, एज फार एज द मॉनेटरी स्टेबिलिटी इज कंसर्न इन इंडिया। ठीक है, या फिर और भी फंक्शंस होते हैं भाई, इशुएंस ऑफ करेंसी इन द फॉर्म ऑफ बैंक नोट्स। सोर्सेज ऑफ इनकम क्या होता है भाई? पहला ऑप्शन है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड्स। ओपन मार्केट ऑपरेशंस पढ़ा होगा आप लोगों ने, ओपन मार्केट ऑपरेशंस where the Reserve Bank of India involves itself in buying and selling of government bonds. तो भाई वो एक important source of income है भाई, इंटरेस्ट होता है ना उसमें, बॉन्ड्स में। ठीक है, या फिर बॉन्ड प्राइसेस का अगर मूवमेंट हो रहा है अप एंड डाउन, दैट कैन ऑल्सो बिकम अ सोर्स ऑफ इनकम फॉर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ फॉरेन करेंसी, भाई फॉरेक्स रिजर्व्स इतना इंपॉर्टेंट फंक्शन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का टू मैनेज द एक्टिविटीज इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। भाई इमेजिन करो कि अगर यूएस डॉलर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अगर सस्ते दामों पे खरीदा, इफ इट बाइज एट लोअर रेट्स एंड देन सेल्स एट हायर रेट्स, इट वुड इनकर सम प्रॉफिट, इनकम करेगा। ठीक है, पेंशन फंड मैनेजमेंट, भाई जाहिर सी बात है पेंशन फंड मैनेजमेंट, पेंशन देखते ही यू कैन वेरी इजीली रूट दिस आउट बिकॉज इट डज नॉट कम अंडर द ओवरऑल एम्बिट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इट कम्स अंडर द ओवरऑल एम्बिट ऑफ जुरिसडिक्शन ऑफ पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, पीएफआरडीए। ठीक है, नेक्स्ट इज लेंडिंग टू प्राइवेट कंपनीज। भाई प्राइवेट कंपनीज को सोच के देखो, प्राइवेट बैंक्स को तो लेंड करेगा रिजर्व बैंक और इंटरेस्ट कमाएगा उस पर, बट प्राइवेट कंपनीज पे थोड़ी करेगा। एब्सर्ड स्टेटमेंट है। फोर्थ, ठीक है, देन सेइंग प्रिंटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग करेंसी नोट्स। बिल्कुल भाई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अगर आपने थोड़ा सा भी ज़्यादा पढ़ा है, देयर इज वन वर्ड विच इज नोन एज सीनोरेज, राइट। सीनोरेज मीन्स कि जो प्रॉफिट अराइज होता है, एक भाई नोट बना तो उसका एक फेस वैल्यू है। ठीक है, फेस वैल्यू मतलब लेट्स से 100 रुपये का नोट है, एंड देन देयर इज ऑल्सो द कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग, लेट्स से 3 रुपीज़ वॉज द कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग विद रेस्पेक्ट टू वन नोट। सो ये सीनोरेज होता है, डिफरेंस जो आता है बिटवीन द फेस वैल्यू एंड द प्रोडक्शन कॉस्ट। ये भी एक सोर्सेज ऑफ इनकम है रिजर्व बैंक का। और अगर आपने थोड़ा और ज़्यादा पढ़ा है, बेसिक्स भी क्लियर है, एज आई सेड कि भाई यहाँ पर हम उन लोगों की बात कर रहे हैं जिनका थोड़ा कंसेप्ट क्लियर है। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा और आप सोच रहे हैं कि चीज़ें हो जाएंगी हवा में तीर मारने से, तो नहीं होगा। ठीक है, लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट। देयर इज़ वन थिंग, बिमल जालान कमिटी, जहाँ पे भाई कमिटी ने बोला था कि जो भी, इट बेसिकली टॉक्ड अबाउट कि जो भी सोर्सेज ऑफ इनकम, वॉट एवर प्रॉफिट आरबीआई वुड एक्रू, इट वुड बी गिवन बैक टू द गवर्नमेंट। तो ये एक चीज़ है। तो यहाँ पे आराम से आप कंसेप्ट अप्लाई करके, यहाँ पे नो बडी इज आस्किंग यू, द क्वेश्चन इज नॉट डायरेक्ट, अंडरस्टैंड इट इज फोकसिंग अपॉन द कंसेप्ट। लेट्स टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया mandates all the listed companies to submit a business responsibility and sustainability report. In India, companies submitting a BRSR makes disclosures in the report that are largely non-financial in nature. Is the question asking you what BRSR is all about? No. The question is talking about the applied concept. यही मैं बताना चाह रहा हूँ आपको। यहाँ पर the question is not asking कि भाई sustainability report क्या होता है। इट इज़ नॉट आस्किंग कि भाई ESG फ्रेमवर्क क्या होता है। आपको पता होना चाहिए ये चीज़, एनवायरमेंटल, सोशल, गवर्नेंस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो यहाँ पे BRSR जो गाइडलाइंस है, जो रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है, पहली बात देखो, रिजर्व बैंक नहीं करेगा इस चीज़ को, इट इज़ विद रिस्पेक्ट टू द कंपनीज। तो कौन कर सकता है? थोड़ा बहुत दिमाग लगाओ। या तो भाई मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स करेगा, या कोई और बॉडी कर सकती है। इनिशियली जब ये फ्रेमवर्क आया था, इट वॉज बेसिकली given as a part of the regulations by the Ministry of Corporate Affairs. But right now we have these guidelines where the companies have to tell कि भाई how much effort they are putting in the environmental, social and governance aspect. And this is under the overall command structure of SEBI. तो यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, the very objective of this video is not to explain what these concepts are, but still I'm trying to do that. I'm just telling you that the questions, they are not direct in nature. It is focusing upon, are you clear with the concepts? Information से काम नहीं चलेगा कि सर मैंने पढ़ लिया सेबी के फंक्शंस क्या होते हैं, सर मैंने पढ़ लिया
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के फंक्शंस क्या हैं, बैंकर्स टू द बैंक है, ये है वो है, यहाँ पे वो नॉलेज काम नहीं आएगी ना। यहाँ पे थोड़ा सा आपको आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा, थोड़ा कंसेप्ट को अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बिल्कुल नहीं है, इट इज़ द सेबी विच डज दैट, ठीक है। दूसरा क्या बोल रहा है, इन इंडिया कंपनी सबमिटिंग अ BRSR मेक्स अ डिस्क्लोजर इन द रिपोर्ट दैट आर लार्जली नॉन फाइनेंशियल, येस करेक्ट। You are talking about what all responsible actions you have taken, what all responsible actions a company has taken in the environmental domain, in the social domain. So these are non-financial aspects, ठीक है। तो सिर्फ सेकंड सही होगा। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं भाई, थर्ड वाला। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन है सर्कुलर इकोनॉमी पे, ठीक है। सर्कुलर इकोनॉमी, स्टेटमेंट 1 says circular economy reduces the emissions of greenhouse gases, ठीक है। Circular economy reduces the use of raw materials as inputs. Circular economy reduces the wastage in the production process. मैंने मान लिया भाई, पहली बात तो सर्कुलर इकोनॉमी कहीं पे भी आप किसी स्पेसिफिक रिसोर्स में नहीं पढ़ोगे। कोई आर्टिकल आया वहाँ पे सर्कुलर इकोनॉमी का मेंशन था तो आप गूगल कर लोगे। You will not find a particular source which mentions each and everything about circular economy. So stop हैविंग दिस आइडिया कि हर चीज़ का एक सोर्स होता है। सर बुक बता दो, नहीं बुक पॉसिबल नहीं है, आपको थोड़ा अप्लाई करना पड़ेगा। सर्कुलर इकोनॉमी का बेसिक प्रेमाइस क्या है कि भाई हम अपनी एक्टिविटीज़ को सस्टेनेबल बना रहे हैं। वी आर बेसिकली यूजिंग द रिसाइकलिंग, द रीयूज, द रीफर्बिशिंग, बोलते हैं ना 3R अप्रोच। तो यहाँ पर पहला क्या है, सर्कुलर इकोनॉमी रिड्यूसेस द इमिशंस। जाहिर सी बात है भाई, आपने एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाने के लिए रॉ मटेरियल्स लिए पहले, फिर उनको यूज़ किया इस प्रोडक्ट बनाने में, अब ये एंड ऑफ द लाइफ पे पहुंच गया है अपनी। नाउ व्हाट यू आर डूइंग इज यू आर रीफर्बिशिंग दैट। सो यहाँ पे आपने एक्सट्रैक्ट कर लिया जो यहाँ पे कैपेसिटर्स थे भाई, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट था फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे भाई कुछ मेटल्स होंगे इसके अंदर जो यूज़ किए होंगे। अब उन मेटल्स को हम दोबारा यूज़ कर सकते हैं किसी और प्रोडक्ट बनाने के लिए। वी कैन यूज़ इट टू क्रिएट अनदर प्रोडक्ट, टू मैन्युफैक्चर अनदर प्रोडक्ट। सो वी विल नॉट रिक्वायर द सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी which was required here to extract the mineral for the refining aspect, refining and then coming out with that particular element. तो ये क्या कर रहा है, डेफिनेटली इट वुड रिड्यूस द एमिशंस ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। सर्कुलर इकोनॉमी रिड्यूसेस द यूज ऑफ रॉ मटेरियल, बिल्कुल सही बात है। अब नया प्रोडक्ट बनाने के लिए यहाँ पर मुझे नए रॉ मटेरियल की जरूरत नहीं थी। I didn't require new raw materials because I just sourced it from those products which I have basically called as wasted. So I'm extracting that particular raw material from the waste material. ठीक है, नेक्स्ट चीज क्या बोल रहा है, सर्कुलर इकोनॉमी रिड्यूसेस द वेस्टेज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। ऑब्वियसली अब ये जो चीज़ है, अगर ये मैं वेस्ट कर देता, इसको अगर मैं डंप कर देता तो ये वेस्ट हो जाता। बट वॉट आई हैव डन इज आई एम यूटिलाइजिंग इट इन दैट सर्कुलर फ्रेमवर्क। तो ये भी सही है, अप्लाई करो ना। मतलब देखो यहाँ पर कुछ भी नया नहीं है ऐसा, यहाँ पे भाई कंसेप्ट है बस, और कुछ नहीं है। तो भाई बोथ स्टेटमेंट सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट एंड बोथ ऑफ देम एक्सप्लेन स्टेटमेंट वन। व्हाई? बिकॉज ये जो दोनों प्रोसेस हैं, अगर भाई कोई नई चीज़ आप प्रोड्यूस कर रहे हो रॉ मटेरियल्स, या फिर अगर आप सिर्फ वेस्ट कर रहे हो, तो उसमें क्या होगा, देयर वुड बी द इमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, बट यू आर स्टॉपिंग दैट। सो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। समझ में आया? लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट थिंग। इट सेज, क्वेश्चन सेज, consider the following pairs. We have separation of judiciary from the executive from the public services of the state, valuing and preserving the rich heritage of the composite culture, prohibition of employment of children under the age of 14 years. सर सारे रट लिए आर्टिकल्स, लेकिन अंडरस्टैंडिंग नहीं बनी, कंफ्यूज हो जा रहे हैं। ठीक है भाई, क्या बोल रहा है, सिंपल, मतलब ये क्वेश्चन भी अगर कोई गलत कर रहा है ना, तो मतलब आई थिंक दैट पर्सन शुड नॉट सिट इन द एग्जामिनेशन। ये क्वेश्चन, आई कॉल दीज क्वेश्चंस एज फ्री क्वेश्चंस। ये तो आपको सही करने ही हैं एट एनी कॉस्ट। सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, बिल्कुल सही है भाई। डीपीएसपी आर्टिकल 50 mandates the state that there has to be the separation of judiciary from the executive in the public services. Then we have valuing and preserving the rich heritage of composite culture, बिल्कुल सही है। fundamental duties, भाई we have article 51 capital A talks about the fundamental duties. Then it says prohibition of employment of children below the age of 14 years of age in factories, बिल्कुल सही है। fundamental rights article 24. 23 क्या बोलता है, prohibition of traffic in human beings and forced labor, तो बिल्कुल सही है। यहाँ का how many of the above pairs are correct? all 3। तो ये questions तो बिल्कुल गलत मत करना, concept test हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। with reference to the constitution of India, if an area in the state is declared as scheduled area under the 5th schedule, ठीक है भाई, 5th schedule की बात कर रहा है, all right,
the state government loses its executive power in such areas and a local body assumes total administration. देखो ये ना यहाँ पर एक और फॉर्मूला लोगों ने इजाद किया है विच इज़ एब्सोल्यूट वाला, ठीक है, मतलब हर जगह सही नहीं होता बट हाँ काफ़ी जगह सही हो जाता है. भाई फिफ्थ शेड्यूल एरियाज हैं, बहुत सिंपल सी बात है दैट फिफ्थ शेड्यूल एरियाज आर फॉर दी शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ठीक है, शेड्यूल एरियाज एक्सेप्ट द 4 स्टेट्स ऑफ आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, जो कि हम 6 शेड्यूल से देखते हैं. अब ये बोल रहा है कि भाई द स्टेट गवर्नमेंट लूजेज इट्स एग्जीक्यूटिव पावर. ऐसा कैसे पॉसिबल है भाई? ये तो बहुत क्लियरली है, क्लियरली पता है हम लोगों को दैट द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट ऑल्सो एक्सटेंड्स टू द फिफ्थ शेड्यूल एरियाज. बट यहां पर गवर्नर के पास कुछ एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है. ही हैज टू सबमिट अ रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट रिगार्डिंग द अफेयर्स ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन इन सच एरियाज, ठीक है. और कौन डिक्लेयर करता है भाई फिफ्थ शेड्यूल एरियाज? वी हैव द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एम्पावर्ड टू डिक्लेयर अ पर्टिकुलर एरिया एज अ फिफ्थ शेड्यूल एरिया. तो ये तो बिल्कुल गलत होगा. कंसेप्ट है भाई सिंपल. द यूनियन गवर्नमेंट कैन टेक ओवर द टोटल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सच एरियाज अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द गवर्नर. भाई ऐसा कोई भी प्रोविजन नहीं है फिफ्थ शेड्यूल में which talks about कि भाई यूनियन गवर्नमेंट हैज द पावर टू टेक ओवर द टोटल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द शेड्यूल एरिया. भाई यहां पर what you'll have to understand is that governor is empowered. Governor can direct that any particular act of parliament or state legislature वो किस तरीके से अप्लाई होगा. What would be the way in which any of the law made by the parliament or any of the law made by the state legislature, how that would be applied. But ये थोड़ी है that union government can take over the total administration. Absolutely correct, incorrect. तो यहां पर क्या होगा, क्या पूछ रहा है ये भी देख लेना कि भाई करेक्ट पूछ रहा है इनकरेक्ट पूछ रहा है. करेक्ट कोई भी नहीं है, करेक्ट डी. ये क्वेश्चन देखते हैं. सपोज द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज, ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना है 80,000 एंड द रेवेन्यू रेसिप्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट आर 60,000. रेवेन्यू रेसिप्ट्स कितना है 60,000, ठीक है. देन इट ऑल्सो सेज वी टॉक अबाउट द नेक्स्ट पार्ट विच इज it says that the government budget also shows borrowings of 10,000 crore and interest payment of 6,000 crores. Which of the following are correct? तो यहाँ पे बात हो रही है भाई budget shows borrowings कितना है 10,000 crores, okay, and the interest payments are to the tune of 6,000, ठीक है. पूछ क्या रहा है? Which of the following are correct? भाई basic economy है यहाँ पर, basic. You have revenue expenditure and you have revenue receipts. तो deficit क्या होता है? What is revenue deficit? That out of the total expenditure you subtract the receipts. आप भाई 80 में से 60 निकाल लो. You minus revenue expenditure. Out of the revenue expenditure you minus the revenue receipts. You will get 20,000 crores. क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? ठीक है, 20,000 करोड़. फिस्कल डेफिसिट क्या होता है भाई? टोटल कंपनसेशन के लिए मुझे जितना भी बोरोइंग करना है, विच आई हैव टू बोरो द मनी इन ऑर्डर टू कंपनसेट, आई हैव दैट एज फिस्कल डेफिसिट. कितना बोरो करना पड़ रहा है 10,000. तो यहां पर क्या होगा 10,000 करोड़. प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है कि भाई आप फिस्कल डेफिसिट में से इंटरेस्ट पेमेंट्स को माइनस कर दीजिए. प्राइमरी डेफिसिट इज व्हाट वी हैव द प्राइमरी डेफिसिट एज out of the total fiscal deficit you minus the interest payments. So you have 10,000 crores minus 6,000 crores as 4,000 crores. Concept yahan par this is not an economy class or polity class, but we are focusing upon how to get to the answer, theek hai. So all three are correct. D correct hi पूछ रहा है ना, ठीक है. Select the correct answer. I hope it is clear, ठीक है. अब second चीज क्या है? Second most important parameter which you have to understand. पहला क्या था भाई? कंसेप्चुअल क्लैरिटी इज मोर इंपॉर्टेंट देन द इंफॉर्मेशन. सेकंड इज हाउ टू डेवलप द स्किल टू एलिमिनेट. एज आई सेड इन द बिगनिंग कि बहुत ही स्टीरियोटिपिकल मैनर में हम लोग एलिमिनेशन को देखते हैं. ऐसा नहीं है. अगर एलिमिनेशन का मतलब ये है भाई, सिंपल सी बात है बच्चों, दैट यू अप्लाई सम लॉजिक, यू अप्लाई सम रीजन एंड देन यू फाइंड आउट कि भाई ये स्टेटमेंट तो गलत है, और उस स्टेटमेंट के बेसिस पे यू गेट टू द आंसर थ्रू द ऑप्शंस. लेट्स लुक एट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. Without the atmosphere, temperature would be well below the freezing point everywhere on the Earth's surface. चलो इसको हम बाद में देखते हैं. Heat absorbed and trapped by the atmosphere maintains our planet's average temperature. बिल्कुल सही है भाई. जिसने बेसिक ज्योग्राफी भी पढ़ी है ना, उसको पता होगा हीट बजट क्या होता है. Absorption and trapping of heat, and that maintains the very
conducive conditions for living. That is a heat budget. बिल्कुल सही है. Maintains the average temperature. Atmosphere's gases like carbon dioxide are particularly good at absorbing and trapping the radiation. Absolutely correct. भाई ग्रीन हाउस गैसेस क्यों बोलते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, वाटर वेपर, दे आर वेरी गुड एब्जॉर्बर्स ऑफ हीट. पहला वाला बोल रहा है विदाउट द एटमॉस्फेयर द टेम्परेचर वुड बी वेल बिलो फ्रीजिंग पॉइंट एवरीवेयर ऑन द अर्थ सर्फेस. भाई यू हैव दिस अर्थ, ये हमारा एटमॉस्फेयर है, यहाँ पर यू हैव सन्स रेज कमिंग, इट इज ट्रैपिंग द हीट एंड देन इट इज एब्जॉर्बिंग एंड स्कैटरिंग इट. अगर एटमॉस्फेयर नहीं होता, इमेजिन करो यहाँ पर डायरेक्ट सनरेज आ रही हैं, the things would have become so harsh, the temperatures would have increased to a great degrees during the daytime. What happens for example on moon and Mars? रात में क्या होता है shadow में? That the temperature would have gone to sub-zero temperatures, freezing से भी कम, very cold conditions. So there would have been a lot of contrast. लेकिन because of the atmosphere what we see is that there is a balance. तो ये तो एब्सर्ड है ना, पहला स्टेटमेंट तो एब्सोल्युटली गलत है. फ्रीजिंग पॉइंट कैसे हो जाएगा भाई? एटमॉस्फेयर नहीं है तो और ज़्यादा यू विल हैव डायरेक्ट रेज ऑफ सन स्ट्राइकिंग एंड क्रिएटिंग वेरी टफ कंडीशंस फॉर लिविंग. टेम्परेचर सोरिंग मोर देन 100 डिग्रीज और 150 डिग्रीज. सो यहाँ पर भाई पहला वाला आप रूट आउट करो. फर्स्ट वाला कहाँ कहाँ गिवन है देखो, ए बी सी. नहीं भी आता तो डायरेक्टली मार्क कर दो सेकेंड एंड थर्ड. ठीक है, अब ये देखते हैं नेक्स्ट. इंडिया हैज़ ज्वाइंड द मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप as a member. Okay, ठीक है. Then it says India is a resource rich country in all the 30 critical minerals that it has identified. ये तो मतलब अगर आप बेसिक न्यूज़पेपर भी पढ़ रहे हो, थोड़ा भी अगर आपको अंदाज़ा है, अगर आप इतना इंटेंसिवली भी पढ़ाई नहीं कर रहे, so you would be very clear with the fact that India is a net importer as far as critical minerals are concerned, and primarily we are importing from a country like China, which is our adversary. So we obviously know that we don't have, and that too all recognized, all लिखा हुआ है. Absolutely incorrect. The Parliament in 2023 has amended the Mines and Minerals Development and Regulation Act 1957, empowering the central government to exclusively auction the mining leases and composite license for certain critical minerals. चलो नहीं भी आता, I'm saying I don't know this, but I know that yes, India does not have that. National Critical Minerals Mission लेके आए हैं, अलग अलग चीज़ें करी हैं in order to make sure that we focus more upon indigenous development and we also diversify the supply chain. और mineral security partnership, it's a US led initiative. उसका मेन बेसिस ही यही है, ऑब्जेक्टिव ही यही है कि भाई सप्लाई चेन्स को, किस सप्लाई चेन्स को, क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई चेन्स को वी हैव टू स्ट्रेंथन, वी हैव टू डाइवर्सिफाई, बिकॉज द वर्ल्ड कैन नॉट बी टोटली डिपेंडेंट ऑन अ कंट्री लाइक चाइना. एंड वी ऑलरेडी सी what happened during कोविड टाइम्स. ठीक है, तो ये क्या है भाई, सेकंड वाला गलत है. सेकंड देखो कहाँ पर है, बी ऑप्शन में है, डी में है, एंड देन इट्स इन ए. सो करेक्ट आंसर वुड बी सी. Directly you can get to the answer. Let's look at this. Consider the following statements. I hope you are understanding what I'm trying to say. I am not focusing, again I'm saying this is not an economy or current affairs or polity class. I'm just trying to tell you that how elimination really works. थोड़ा सा out of the box सोचना पड़ेगा, तब जाके चीज़ें होंगी. ठीक है, let's look at this. Consider the following statements. Capital receipts create liability or cause a reduction in the assets of the government. ठीक है भाई. Borrowings and disinvestments are capital receipts. Okay. Interest received on loans create a liability on the government. भाई बहुत सिंपल सी बात है, कैपिटल रिसिप्ट्स बचपन से पढ़ा है हम लोगों ने भाई. रेवेन्यू रिसिप्ट्स और कैपिटल रिसिप्ट्स. कैपिटल रिसिप्ट्स वो होते हैं, वो पैसा जो हमको मिल रहा है विच रिड्यूसेस अवर एसेट्स, या भाई हमारी लाइबिलिटीज को इंक्रीज करे. ठीक है, कैपिटल रिसिप्ट्स क्रिएट लाइबिलिटी और कॉज अ रिडक्शन इन दी एसेट्स. आप डिसइन्वेस्टमेंट कर रहे हो भाई, आपके पास एक पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है, आप अपनी स्टेक्स को डिसॉल्व कर रहे हो, लिक्विडेट कर रहे हो, तो अपने एसेट्स कम कर रहे हो या नहीं. या आप बोरोइंग कर रहे हो, यू आर बोरोइंग मनी फ्रॉम लेट्स से इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस और फ्रॉम एनी ऑफ द कंट्रीज, अदर कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड. सो यू आर क्रिएटिंग अ लाइबिलिटी फॉर योर सेल्फ. सो बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट. बोरोइंग्स एंड डिसइन्वेस्टमेंट्स आर कैपिटल रिसिप्ट्स. बिल्कुल ठीक है. इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लोन्स क्रिएट्स अ लाइबिलिटी ऑन द गवर्नमेंट. भाई इंटरेस्ट क्यों आएगा? जब सरकार कोई लोन देगी किसी को,
स्टेट्स को फॉर एग्जाम्पल लोन दे दिया या किसी कंट्री को, एंड द गवर्नमेंट इज ऑन अ पीरियोडिक बेसिस इट्स रिसीविंग द इंटरेस्ट अमाउंट. इंटरेस्ट अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ा है, बेसिक्स भी अगर आपको पता है, इट इज अ पार्ट ऑफ रेवेन्यू रेसिप्ट्स, एंड रेवेन्यू रेसिप्ट्स डू नॉट क्रिएट अ लाइबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब क्या, सोचो भाई एजुकेशन के लिए स्कूल्स क्रिएट कर रहे हैं, हॉस्पिटल्स बना रहे हैं, तो ये एसेट्स क्रिएशन हो रहा है यहाँ पर, तो ये गलत है, एब्सोल्युटली इनकरेक्ट. सी थर्ड कहाँ कहाँ पर है, थर्ड यहाँ पर है, थर्ड यहाँ पर है, थर्ड यहाँ पर है, 1 and 2 हो गया आंसर. अगर मुझे सिर्फ ये भी पता होता ना तो आई कुड हैव गॉट माई आंसर्स करेक्ट. ठीक है, आगे देखते हैं. थर्ड पार्ट इज द स्टैटिक एंड करंट इंटीग्रेशन. ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई. बच्चे देयर इज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन रिगार्डिंग कि सर करंट अफेयर्स अलग अलग तरीके से देखते हैं. दे आर लुकिंग एट करंट एंड स्टैटिक इन अ वेरी डिफरेंशिएटेड मैनर. प्लीज डोंट डू दैट. दे आर ऑलमोस्ट वन एट द सेम थिंग. भाई बिना स्टैटिक के करंट नहीं है, और अगर आप सिर्फ करंट पढ़ रहे हो स्टैटिक के बिना, वो पॉसिबल नहीं है. Because you'll not be able to understand current without knowing the static. And if you just covered the static, not covered the current, it's pretty useless because you have not gone into the applied part. अब ये देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है. क्वेश्चन बोल रहा है, it's saying with reference to the direct air capture and emerging technology, which of the following statements is or are correct? It can be used as a way of carbon sequestration. Okay. It can be a valuable approach for plastic production and in food processing. In aviation, it can be a source of carbon for combining with hydrogen to create synthetic low carbon fuel. Reference to direct air capture and emerging technology. Current areas से पूछ रहा है. अब डायरेक्ट एयर कैप्चर, सिंपल सी बात है. एयर कैप्चर थोड़ा सा भी अगर आपने दिमाग लगाया है, थोड़ा सा भी अगर आपने पढ़ा है, आपने ये तो पढ़ा होगा जरूर, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, carbon capture and utilization, CCU. You capture, let's say there's an industry and this is coming, it's emitting carbon dioxide. You basically capture this. Either you store it underground or you use it for certain other purposes. Let's say कि भाई मैं syngas बना रहा हूँ, CO plus H2 can be used as a source of electricity or heat. So you are capturing the carbon dioxide so that it does not enter the atmosphere. So you would reduce the overall emissions. तो ये चीज़ क्या है, ये क्वेश्चन भाई मुझे अगर टेक्नोलॉजी भी नहीं पता तो अगर बेसिक्स भी मुझे पता है अच्छे से, इफ आई नो व्हाट कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन इज ऑल अबाउट, बिकॉज द क्वेश्चन इटसेल्फ टॉक्स अबाउट दिस. ठीक है. इट कैन बी अवेलेबल अप्रोच, पहला बिल्कुल सही है. इट कैन बी अवेलेबल अप्रोच फॉर प्लास्टिक प्रोडक्शन. भाई आपने कार्बन डाइऑक्साइड बनाया, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फीड स्टॉक, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फीड स्टॉक फॉर द क्रिएशन ऑफ प्लास्टिक्स. You can create different hydrocarbons by utilizing the carbon dioxide, and then that can be further used to create the plastics. बिल्कुल सही है. And in food processing, भाई कार्बन डाइऑक्साइड का आप यूसेज कर लोगे ना फूड प्रोसेसिंग में भी, why not? Then it says in aviation it can be a source of carbon for combining hydrogen to create synthetic low carbon fuel. Yes, CO plus H2. मतलब अगर मैं कॉम्प्लेक्सिटी में भी नहीं जा रहा, इफ आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट, आई एम नॉट सेइंग दैट आई नो अबाउट फिशर ट्रॉप प्रोसेस जिससे आप सिन गैस बनाते हैं, बट मुझे बेसिक पता है कि भाई हाँ सिन गैस कुछ होता है. अब सिन गैस कैसे प्रोड्यूस हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड से हो सकता है. बिल्कुल भाई, अलग अलग तरीके होते हैं, गैसिफिकेशन, ठीक है, तो बिल्कुल हो सकता है. और इन सब क्वेश्चंस में ना देखो, यू विल हैव टू मेक श्योर दैट यू ओपन योर माइंड एंड लुक एट द क्वेश्चंस. डोंट कीप योरसेल्फ रेस्ट्रिक्टेड और नैरोड with the options you have. तो यहाँ पर क्या होगा, बिल्कुल 1, 2 and 3 all are correct. Let's look at this question. बहुत बढ़िया सवाल है. Which says, statement 1 says that we have article 6 of the, just a second please, yes, so we have article 6 which says of the Paris Agreement on climate change is frequently discussed in global discussions on sustainable development and climate change. देखो भाई मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको सारे क्लॉजेस पता हैं of the Paris Agreement, but हाँ you would be well aware of article 6 if you have even covered a basic source of environment. You would be well versed कि भाई हाँ article 6 जो है वो भाई मार्केट एंड नॉन मार्केट मैकेनिज्म्स की बात करता है. मार्केट की बात मतलब भाई सिंपल सी बात है ना, पेरिस एग्रीमेंट क्या है, इट इज बेसिकली एन एंडेवर
It's basically a kind of a gathering of countries all over the world in order to reduce the global greenhouse gas emissions. And for that we need various instruments. We can have either market ways or non market ways. Market का मतलब क्या है कि भाई आप emissions को reduce कर रहे हो कैसे? कार्बन ट्रेडिंग से. कार्बन ट्रेडिंग के लिए क्या करना पड़ेगा? कार्बन मार्केट्स को बनाना पड़ेगा. नॉन मार्केट तरीके क्या होंगे? भाई हम मार्केट को इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं. आई एम सेइंग दैट आई एज अ डेवलप्ड कंट्री आई हैव गिवन सर्टेन फिनेंसेस और सर्टेन टेक्नोलॉजी टू द लीस्ट और लो डेवलपिंग कंट्रीज, लो इनकम कंट्रीज. नॉन मार्केट मैकेनिज्म है. तो यहाँ पे भाई कुछ करंट का एसेस नहीं पूछा है. ये बेसिक, और ये कार्बन ट्रेडिंग, कार्बन मार्केट, ये तो भाई बेसिक्स हैं इकोनॉमी के, एनवायरमेंट के. तो क्या बोल रहा है? आर्टिकल 6 ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज इज फ्रीक्वेंटली डिस्कस्ड इन ग्लोबल डिस्कशंस ऑन सस्टेनेबिलिटी. बिल्कुल सही है. आर्टिकल 6 ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट sets out the principles of carbon market. Yes, why not? Article 6 of the Paris Agreement on climate change intends to promote inter-country non-market strategies. Here are non-market strategies. Statement third is also correct. So over here, see, there is no rocket science which I have used. यहाँ पे कोई rocket science मैंने use नहीं किया है. तो तीनों सही हैं. Both statement second and third are correct and both of them explain one. Because both of them, in one way or the other, they are leading to more sustainable aspects. Statement third and statement 2, they are correct explanations for statement 1. समझ में आया? Let's talk about the other areas. ये क्वेश्चन देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है. The World Bank warned that India could become one of the first places where the wet bulb temperatures routinely exceed 35 degrees Celsius. Which of the following statements best reflect the implication of the above said report? See, यहाँ पर मुझे नहीं पता. I don't know what this World Bank report is all about. I'm not even aware. But it says, it is not talking about कि भाई specific बात क्या है. It's saying कि भाई wet bulb temperature, ये तो मुझे पता होगा, बिल्कुल सिंपल सी बात है. It tries to basically understand at that particular place what is the temperature and what is the humidity. तो ये तो बहुत ही basic चीज़ है, wet bulb temperature. And ultimately what it tries to tell us is कि वहाँ पे जो heat stress है वो कितना है उस जगह, और जो इवेपोरेशन के लिए, वाटर वेपर के इवेपोरेशन के लिए व्हाट हैज टू बी द लोएस्ट टेम्परेचर. अब वेट बल्ब टेम्परेचर इट इज एक्सीडिंग एंड रीचिंग टू ऑलमोस्ट 35 डिग्री सेल्सियस. व्हाट दिस शोज इज दैट वी आर विटनेसिंग द एंथ्रोपोजेनिक क्लाइमेट चेंज in the form of increasing wet bulb temperature, where the temperature is also increasing and the humidity is also increasing. Imagine karo ek situation where the temperatures are too much and humidity is also too much. And let's suppose there is a person standing and he is sweating. भाई आप चाहते हैं that the person should feel cool. What should happen? There should be the evaporation of that sweat. But if the humidity is high and if temperatures are high, the sweat would not evaporate. And the person can suffer from various health conditions. बेसिक लॉजिक अप्लाई कर रहा हूं मैं, मुझे कुछ नहीं पता था, मुझे बस इतना पता है कि वेट बल्ब टेम्परेचर क्या होता है, ज्योग्राफी का वेरी बेसिक कंसेप्ट. एंड ओवर हियर इट सेज पेनिनसुलर इंडिया विल मोस्ट लाइकली सफर फ्रॉम फ्लडिंग, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स. जाहिर सी बात है भाई, एंथ्रोपोजेनिक क्लाइमेट चेंज के ये तो बहुत नॉर्मल से इफेक्ट्स हैं, वेयर यू वुड सी द इंटेंसिटी एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्लडिंग इंक्रीजिंग. फ्लड के साथ साथ क्या होगा? ड्राउट्स भी होंगे. तो इसमें कुछ नया क्या है? बहुत सिंपल है ये तो. ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, भाई इंडिया की बात की जाए, वी हैव दिस एरिया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिंग एंड दिस वी नो दैट वी हैव अ लॉट ऑफ साइक्लोन्स striking on the eastern coast, and these peninsular areas what we see is the dry conditions in Maharashtra. Flooding also takes place. So this is what you'll have to understand, because over here we have the equator and this tropical region is witnessing a rising temperature. Also the other areas, but again the effects are more here. The survival of animal including the humans will be affected as shedding of their body heat through perspiration becomes difficult. That is what I told you. Perspiration मतलब क्या? Sweating हो रही है और उसका evaporation नहीं हो पा रहा है. So it is not leading to cooling conditions. कुछ भी नहीं है, मतलब वर्ल्ड बैंक का बस पागल बनाने के लिए, थोड़ा सा डराने के लिए मेंशन कर दिया. अदरवाइज इट्स प्रीटी यूजलेस. यू कैन डायरेक्टली जंप टू द आंसर इवन इफ आई वाज नॉट अवेयर ऑफ व्हाट द रिपोर्ट इज ऑल अबाउट.
ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, क्या पूछ रहा है, करेक्ट, बोथ आर करेक्ट, बोथ 1 and 2. ये देखते हैं, इंडिया इज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांजिट कॉरिडोर विच विल कनेक्ट. ओके भाई, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांजिट कॉरिडोर, मुझे पता है, मैं इतने दिनों से आई हैव बीन हियरिंग द न्यूज़ ऑफ चाबहार पोर्ट, अमेरिकाज सैंक्शंस, Chabahar port connecting, India's ports with Chabahar port, and then further to Afghanistan, and then further to Central Asian republics. ये जो component है, अफगानिस्तान तक तो ठीक है, we had a trilateral pact between India, Iran and Afghanistan, but further to Central Asian republics and then further to Russia, this whole chain comprises of INSCC. So it says India to Central Asia to Europe via Iran. मतलब ये क्वेश्चंस तो गलत करना भी मत, बेसिक क्वेश्चंस. तो यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं है भाई, यहाँ पर देखो स्टैटिक और करंट का इंटीग्रेशन है, कुछ ऐसा आप नई चीज़ नहीं है ये, तो भाई कब से इट हैज़ बीन इन न्यूज सिंस 2012, 13, 14, दिस हैज़ बीन इन न्यूज. सो यू कैन जस्ट से दैट दिस इज अ पार्ट ऑफ द करंट. It's basically an integrated version of the static and the current. Let's look at this particular statement. Consider the following statements about the Rashtriya Gokul Mission. It is an important for the upliftment of the rural poor, as majority of the low producing indigenous animals are with the small and marginal farmers. छोड़ो, मुझे नहीं पता भाई राष्ट्रीय गोकुल मिशन क्या है. I know that Gokul is basically a place where you have the cow sheds, where the cows and the bovines, the buffaloes are kept. मुझे नहीं पता भाई इस मिशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, बट हाँ पहला वाला स्टेटमेंट जो है, इट इज ऑब्वियसली once I read it, it's seemingly correct. It is important for the upliftment of the rural poor, as majority of the low producing indigenous animals are with the small and marginal farmers. Yes, correct. Low productivity bovines are with the small and marginals. Can you just imagine, मतलब भाई जो more productive bovine cattle हैं वो किसके पास हैं? The big farmers. Correct. It was initiated to promote the indigenous cattle and buffalo rearing and conservation in scientific and holistic manner. Yes, भाई fundamental duty भी है ना, साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करना. और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इंडिजिनस ब्रीड्स को वी आर ट्राइंग टू थ्रू द जेनेटिक प्रोसेसेस एंड द अदर प्रोसेसेस वी आर ट्राइंग टू इम्प्रूव द ब्रीड्स. एब्सोल्युटली करेक्ट. इवन इफ आई एम नॉट aware of what Rashtriya Gokul Mission is all about, I know that these statements look quite correct. And Gokul, it's with respect to the cattle. तो बिल्कुल सही है. Which of the following are correct? Both 1 and 2. Next is core really matters. Yes, this is an area which I talked about initially. Please do not ignore the core areas. I have seen people just falling into a trap of environment, IR, missions, government scheme. Sir, government scheme की किताब बता दो. अरे बता देंगे भाई, लेकिन उससे पहले पॉलिटी तो पढ़ लो. पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, क्वेश्चंस कम से कम 40-45 क्वेश्चंस तो पक्के हैं भाई वहाँ से, 100%. So don't ignore. And please, again I'm advising everyone, please don't go for n number of sources. For each and every core subject, have a maximum of 1 or 2 sources. भाई मॉडर्न हिस्ट्री के लिए अगर बिपिन चंद्रा फॉलो किया है, ओरिएंट ब्लैकस्टोन वाला, ओल्ड एनसीईआरटी वाला, तो उस पर टिके रहो. स्पेक्ट्रम फॉलो किया तो उस पर टिके रहो. 4 किताबों के लिए मत भागो, नहीं हेल्प होगा, रिवाइज नहीं कर पाओगे और फिर गलत आंसर मार्क करके आओगे. क्वेश्चन देखते हैं. Consider the following statement about Raja Ram Mohan Roy, by father of modern Renaissance in India, very a personality which to a great extent changed the overall way in which we think. He possessed great love and respect for the traditional and philosophical system of the East. भाई देखो, जनरली लोगों को क्या लगता है कि राजा राम मोहन रॉय हैड एन ऑब्सेशन फॉर द वेस्ट, ऑक्सीडेंटल नॉलेज के लिए ऑब्सेशन था, बट ऐसा नहीं है. ही हैड एन इक्वल रिस्पेक्ट फॉर द ईस्ट, ओरिएंटल प्लस ऑक्सीडेंटल, वेस्टर्न. बट ही सेड कि भाई जो हमारे बहुत ही पैरोकायल कॉन्जर्वेटिव बिलीव्स हैं उनको रूट आउट करना पड़ेगा. तो पहला बिल्कुल सही स्टेटमेंट है. ही डिजायर्ड हिज कंट्रीमेन टू एक्सेप्ट द रैशनल एंड साइंटिफिक अप्रोच एंड द प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन डिग्निटी. बिल्कुल सही बात है, क्या गलत है इसमें? तो अगर आप ये क्वेश्चन भी गलत कर रहे हैं तो भाई कुछ बहुत सीरियस है. ठीक है. विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? बोथ 1 and 2 आर करेक्ट. फाहीन, द क्वेश्चन सेज, Fahim, the Chinese pilgrim traveled to India during the reign of. अब मतलब ये क्या ही बताऊँ मैं, ये तो मतलब बेसिक है भाई. एंशियंट में आर एस शर्मा पढ़ी है आपने, जो भी पढ़ी है, यू वुड सी, यू हैव वॉट एवर सोर्सेज यू हैव फॉलोड. ये तो मतलब बहुत ही बेसिक है, कोई भी बता सकता है, नींद में कोई बता देगा. चंद्रगुप्त सेकंड.
He was one of the most celebrated rulers of the Gupta dynasty. And under his reign, under his ruling, we had the traveler Fahim coming to India, the Chinese traveler. And he visited a lot of places, Mathura, Kannauj, और क्या था, सारनाथ था, अलग अलग जगह. So what you'll have to understand is that he talked about various sources, took a lot of Buddhist sources from here to China, studied Sanskrit language. तो ये तो मतलब बेसिक्स ऑफ हिस्ट्री है, बेसिक्स. तो यहाँ गलत मत करना, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. चंद्रगुप्त सेकंड. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड टू द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट. ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट्स एज फार एज मॉडर्न हिस्ट्री इज कंसर्न्ड. One of the grounding events in which Mahatma Gandhi basically made people to realize what their strength is, what or how, to what level people can exercise their strength. Non-cooperation program, boycott of law courts and foreign clothes, बिल्कुल सही था भाई. We would make sure that we resolve our own disputes. We would not be dependent upon the law courts of the Britishers, बिल्कुल सही है. Observance of strict non-violence, भाई कोर है महात्मा गांधी का. It's the very core of Mahatma Gandhi's philosophy, सत्याग्रह, अहिंसा. थर्ड वाला छोड़ते हैं, फोर्थ वाला देखते हैं. एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पंचायत फॉर सेटलिंग डिस्प्यूट्स, यस. लोकल, भाई सोचो ना, ये सब चीजें क्या है, दीज हैव बीन ऑल्सो इनकॉर्पोरेटेड इन द डीपीएसपीज. गांधीयन प्रिंसिपल्स, पंचायत, लोकल बॉडीज. ठीक है. थर्ड बोल रहा है रिटेंशन ऑफ टाइटल्स एंड ऑनर्स विदाउट यूजिंग देम इन पब्लिक. ये तो एब्सर्ड है भाई. रिटेंशन थोड़ी था, रिनंसिएशन था कि हम अपने टाइटल्स दे देंगे. वी विल लीव, वी विल अबंडन अवर टाइटल्स. वॉट एवर टाइटल्स द ब्रिटिशर्स हैव एंडाउड ऑन अस, वी वुड लीव दैट. ऑब्जर्वेंस ऑफ स्ट्रिक्ट, यस. boycott of law courts, we had many of the prominent lawyers bhai at that particular point of time. Motilal Nehru, we had C Rajagopalachari, Vallabhbhai Patel, all gave up their practice. तो यहाँ पर थर्ड वाला गलत है. फर्स्ट इज करेक्ट, सेकंड इज करेक्ट, फोर्थ इज करेक्ट, ओनली 3. तो इस क्वेश्चन में कुछ है, कोर है भाई, कोर. ये भी अगर गलत करके आ रहे हो तो गलत बात है भाई. विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एविडेंसेस ऑफ द फिनोमेना ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट. मतलब एक छोटा बच्चा भी होता है ना, वो भी एनसीईआरटी पढ़ता है. ये क्वेश्चन मतलब आप जीसी ले आओ तो बहुत बात की बात है. अगर आपने बेसिक, बच्चे बोलते हैं मुझसे, मतलब मैं बोलता हूँ भाई एनसीईआरटी पढ़ना शुरू करो, तो बहुत स्मार्टली मुस्कुराते हैं, सर एनसीईआरटीज तो बहुत बार पढ़ रखी है. अरे भाई पढ़ रखी है तो और पढ़ो. एनसीईआरटीज कोर है. क्वेश्चंस देख रहे हो, डायरेक्ट आ रहा है सारे क्वेश्चंस. ये तीनों क्वेश्चंस बता रहा हूँ मैं, ये तीनों क्वेश्चन यू कैन सॉल्व फ्रॉम द एनसीईआरटीज. नो नीड फॉर एनी अदर बुक. बच्चे यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, सोर्सेज रेफर कर रहे हैं, डोंट डू दैट प्लीज. Which of the following are the evidences of the phenomena of continental drift? The belt of the ancient rocks come from the Brazil coast, matches with that of Western Africa. भाई jigs of it. ये तो मतलब basics है. You have the South Africa, you have the South America having the close collaboration with Africa. Coast sediments are almost same. The gold deposits of Ghana are derived from the Brazil plateau. Yes, we have seen this. ये तो एक बहुत इंपॉर्टेंट एविडेंस है कि जो गाना में जो हमारे गोल्ड रिजर्व्स हैं, वहाँ का कोई भी सोर्स नहीं है. द सोर्स इज एक्चुअली इज इन साउथ अमेरिका. कैसे पॉसिबल है? जिग्स ऑफ इट. Continental drift. The Gondwana system of sediments from India is known to have its counterparts in 6 different land masses. Yes, we have seen the sediments, tellite, पढ़ा होगा, matching with that of Antarctica, Madagascar, Africa, Australia. ठीक है, Falk Islands. बिल्कुल सही है. क्या पूछ रहा है? सेलेक्ट द करेक्ट आंसर. 1 2 3 कुछ भी नहीं है इसमें. कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट तो मतलब बेसिक है भाई. आप ज्योग्राफी की स्टार्टिंग करोगे ना, 2-3 पन्ने पलटोगे 11वीं क्लास की, आपको कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट दिख जाएगा वहाँ पर. तो ये बिल्कुल अवॉइड नहीं करना है. ठीक है, जीसी लेंग बात की बात है, बेसिक पढ़ लो काफ़ी है. किताबों से एग्जाम नहीं निकलता है. यू विल हैव टू मेक श्योर दैट यू गिव इंपॉर्टेंस टू द बेसिक्स. देन विद रेफरेंस टू द इंडियन पॉलिटी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. एन ऑर्डिनेंस कैन अमेंड एनी सेंट्रल एक्ट. बिल्कुल सही बात है भाई. any house of the parliament is not in session. The executive, the president, is entitled to basically promulgate an ordinance. क्या गलत है इसमें? कुछ भी नहीं है. मतलब ये तो अगर थोड़ा सा भी पढ़ा है आर्टिकल 123 तो आप आराम से कर लोगे इसको. सेम पावर एज दैट ऑफ एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, कैन अमेंड और रिपील एनी ऑफ द सेंट्रल एक्ट्स. बिल्कुल सही बात है. एन ऑर्डिनेंस कैन एब्रिज अ फंडामेंटल राइट. भाई 13 सब क्लॉज 2.
No law can abridge a fundamental right. The state cannot make a law which infringes upon any of the fundamental right. और law की definition, it includes the ordinance, custom, usage, rule, regulation, bylaws. गलत है ये. An ordinance can come into effect from a backdate. कौन मना कर रहा है? बिल्कुल भाई, retrospective legislations नहीं सुना? Retrospective legislations बिल्कुल हो सकता है, बैकडेट से आ सकते हैं. तो पहला सही है और थर्ड सही है. फर्स्ट एंड थर्ड. क्या पूछ रहा है? विच आर करेक्ट. सो वी हैव सी ऑप्शन. क्या दिक्कत है? मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड वाई पीपल फाइंड क्वालिफाइंग प्रीलिम्स सो डिफिकल्ट. Believe me, I'm not saying that it is because of the knowledge. I'm not boasting myself. I'm just telling you can also do it. कर सकते हो आराम से. ठीक है, ये देखो. The Constitution of India explicitly mentions that in certain spheres, the governor of a state acts in his or her own discretion. By basics, Article 163. The governor would act on aid and advice of the Council of Ministers, except in those areas where he requires to act in his discretion. And who would basically decide that which all areas come in his discretion? It would be governor himself. Explicit. The president of India can of his or her own reserve a bill passed by the state legislature for his or her consideration. Possible ही नहीं है भाई. गवर्नर का ड्यूटी है. गवर्नर बेसिकली रिजर्व्स अ बिल फॉर द प्रेसिडेंट्स कंसिडरेशन. प्रेसिडेंट क्यों करेगा? एब्सर्ड है. तो सेकंड वाला गलत है. क्या होगा? विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? ओनली फर्स्ट इज करेक्ट. तो ऐसे क्वेश्चंस को भाई बिल्कुल बिल्कुल इग्नोर मत करो. डोंट इग्नोर सच क्वेश्चंस, because these are the areas where you can easily score marks. Let's talk about the next area. और आई थिंक ये सबसे इंपॉर्टेंट है. आप कितना भी पढ़ लीजिए, 10 घंटा पढ़ लीजिए, अगर आप अपना एप्टीट्यूड, बेसिक कॉमन सेंस नहीं यूज़ कर रहे हैं, तो यू आर बेसिकली डूइंग इनजस्टिस टू योरसेल्फ. डोंट डू दैट. लेट्स लुक एट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. Carbon dioxide emissions in India are less than 0.5 tons carbon dioxide per capita. थोड़ा सा भी एनवायरनमेंट पढ़ा है, बेसिक्स पढ़ा है, तो भाई ये तो आपको पता ही होगा कि पर कैपिटा इंडिया के एमिशंस, अगर कोई भी रिपोर्ट पढ़ी है भाई, कोई भी आप करंट अफेयर्स फॉलो कर रहे हो, तो पता होगा भाई इंडिया के एज कंपेयर टू द डेवलप्ड कंट्रीज वी हैव वेरी लेस पर कैपिटा एमिशंस, बट ओवरऑल वी हैव अ सब्सटैंशियल अमाउंट. पर कैपिटा की बात की जाए तो भाई यूएस का कम से कम भाई 16 के आसपास है, 16 टन्स. चाइना का 9 के आसपास है. इंडिया का वी हैव अराउंड 4. राइट. सो दिस इज इनकरेक्ट. 0.5 कहां से आ गया? 0.5 तो भैया 1970s में था, तो ये गलत है. इन टर्म्स ऑफ CO2 एमिशंस फ्रॉम फ्यूल कंबस्शन, इंडिया रैंक सेकंड इन एशिया पैसिफिक. एशिया पैसिफिक में भाई सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रीज कहाँ हैं? वी हैव दी चाइना, वी हैव इंडिया. तो चाइना सबसे ज़्यादा होगा, इंडिया सेकंड होगा. बिल्कुल लॉजिकली करेक्ट है. क्या गलत है इसमें? Electricity and heat producers are the largest sources of CO2 emissions in India. We know that we are critically dependent on thermal power. More than 60% of our needs, electricity needs, come from thermal. भाई installed capacity है non-renewable. Once we talk about the green sources, we have an equal capacity, almost 50%, the green sources. But capacity utilization जो है वो thermal sources का ज़्यादा है. And this is one of the most important reasons for emissions. ये भी सही है. तो आंसर क्या होगा? Which of the following statements are correct? We have second and third. मतलब आप ये मत सोचो कि मैं हाइंडसाइट में बता रहा हूँ आपको. ये अगर मुझे बेसिक्स भी पता है कि भाई यूएस का 16 है, चाइना का अराउंड 9 है, इंडिया का अराउंड 4 है, तो 0.5 तो भाई हमारा 1970s में था, 70-75 में था, अभी थोड़ी है. ये देखो, कंसिडर द फॉलोइंग: सिगरेट बड्स, eyeglass lenses, car tires. How many of the above contain plastics? भाई कार टायर्स बिल्कुल भाई नेचुरल रबर भी होती है, थोड़ी सिंथेटिक प्लास्टिक भी होती है. यस. आई ग्लास लेंसेज, पॉलीकार्बोनेट लेंसेज, सुना होगा आपने, पॉलीकार्बोनेट लेंसेज, बिल्कुल सही है. सिगरेट बड्स, ये कंफ्यूज कर सकता है. सिगरेट बड्स जो होते हैं भाई, यहाँ पर इफ़ यू हैव स्टडीड अ बिट, यू वुड सी दैट इट इज़ कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज एसिटेट. सेलुलोज एसिटेट जो होता है, इट्स अ ह्यूमन मेड प्लास्टिक. The cigarette butt, it almost takes 10 to 12 years to degrade. तो ये भी एक environmental menace है. It's a cause of problem with respect to the environment. तीनों होगा, all three. यहाँ देखो, with reference to unmanned aerial vehicles, consider the following statements.
ऑल टाइप्स ऑफ यूएवीज कैन डू वर्टिकल लैंडिंग. अभी तो भाई यूएवीज हम देख ही रहे हैं, ड्रोन्स देख ही रहे हैं, वॉट ईरान इज डूइंग. सारे ड्रोन्स वर्टिकल लैंडिंग कर लेंगे? नहीं, VTOL वाले होते हैं वो तो, वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग. सारे ड्रोन्स थोड़ी करेंगे. बट ऑब्वियस, all types, absolute all types of UAVs can do automated hovering. होवरिंग क्या होता है? एक ही जगह पे स्टेशनरी टिके रहना. हेलीकॉप्टर्स देखे हैं आप लोगों ने? हेलीकॉप्टर्स एक ही जगह पे विद द हेल्प ऑफ द ब्लेड्स दे स्टे एट अ कांस्टेंट प्लेस. सो अब कोई अगर विंग्स बेस्ड ड्रोन है, कोई अगर विंग्स बेस्ड अनमैन्ड एरियल व्हीकल है, तो वो होवर थोड़ी कर पाएगा. एरोप्लेन जो होता है, कैन इट होवर? कैन इट स्टे एट वन पर्टिकुलर प्लेस? नो, बिकॉज it requires that thrust. So this is also incorrect. Forward thrust चाहिए होता है और wings के basis पे ऊपर नीचे होते हैं वो. All types of UAVs can use battery only as a source of. भाई only ऐसा क्यों होगा? Fuel cell हो सकता है, aviation turbine fuel use कर सकते हैं. कुछ UAVs तो भाई सोलर पावर पे भी चलते हैं. तो ऐसा थोड़ी है, कुछ यूनिवर्सल एब्सोल्यूट थोड़ी है. How many of the above statements are correct? None. D. So that is what you'll have to understand. It is not, you'll have to see, you'll have to apply some common sense. See this, no virus can survive in ocean waters. No virus can survive in ocean waters. We know that viruses are that entities which are present almost each and everywhere, omnipresent. तो ऐसा कैसे पॉसिबल है? इनफैक्ट भाई ओशियंस में तो यू हैव वन ऑफ द लार्जेस्ट numbers of viruses. नो वायरस कैन इन्फेक्ट बैक्टीरिया. साइंस एंड टेक का बहुत बेसिक चीज़ है विच इज़ फेज टेक्नोलॉजी. अगर भाई यू मस्ट हैव स्टडीड अबाउट द एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, AMR. यहाँ पर देयर इज न्यू टेक्नोलॉजी विच इज़ फेज टेक्नोलॉजी, फेज थेरेपी, वेयर सम वायरसेस आर यूज टू ईट टू डिस्ट्रॉय बैक्टीरियाज. तो ये तो बिल्कुल गलत है भाई. नो वायरस कैन इन्फेक्ट, और नहीं भी पता मुझे भाई फेज टेक्नोलॉजी, तो ये क्या है? ये तो एब्सर्ड है. No virus can change the cellular transcriptional activity in host cell. How is that possible? Bhai, there are many viruses which enter the cells and then they alter the activity, they utilize the energy and food from the cells and then they alter the genes. Transcription करते हैं, transcriptional activity, where they basically, transcription में क्या होता है, that they create the RNAs from the DNAs, and this is also one of the reasons for the developing cancers. तो ये क्या है? No virus can change the cellular transcriptional activity. बिल्कुल गलत है भाई. parasitic होते हैं, these are parasitic, they enter the cells and utilize their energy and food production systems to alter the gene expression. Consider the following space missions. Axiom 4, अभी we had Captain Shukla attending the Axiom 4 mission. SpaceX, Gaganyaan. In how many of the above missions given above encourage and support microgravity research? भाई मुझे नहीं पता कि तीनों मिशंस क्या हैं. मुझे इतना पता है कि कोई भी मिशन अगर ये है, this would take place in the space. स्पेस में you have gravity which is quite lesser than that on the earth. So वहाँ पर there would be, it is but obvious, it is natural that there can be some experiment with respect to microgravity कि भाई physical, biological, chemical compositions पे कैसे affect होता है with respect to the gravity, how gravity alters the physical, biological and chemical structures. Let's say कि भाई Axiom 4 में अगर थोड़ा न्यूज़ भी देखा है, वहाँ पे they worked on how it affects the biological growth on humans, on plants. तो ऐसे questions में generally you have all three as correct. Let's look at this. Consider the following statements in respect of the International Bank for Reconstruction and Development, IBRD. One of the members of the World Bank Group. बाकी हैं International Development Association, International Finance Corporation, Multilateral Investment Guarantee या Interstate Dispute Settlement Authority, ऐसे ही कुछ है, right? So it says IBRD and then you have IBRD. So the World Bank Group comprises of these 5 agencies. It provides loans and guarantees to middle income countries. बिल्कुल सही है. Loans, guarantees, ultimate objective क्या है? Development का है. And this is one of the largest institutions, development institutions around the world.
इट वर्क सिंगल हैंडेडली टू हेल्प डेवलपिंग कंट्रीज टू रिड्यूस पॉवर्टी. भाई बाकी लोग क्या करेंगे फिर? ये भी तो हैं. ये क्या है? IDA, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन. दिस गिव्स ग्रांट्स टू द लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज. दिस गिव्स मनी टू द प्राइवेट कॉरपोरेशंस. तो ये सिंगल हैंडेडली तो नहीं करेगा. इट वॉज एस्टैब्लिश टू हेल्प द यूरोप रीबिल्ड आफ्टर द वर्ल्ड वॉर सेकेंड. यस, ब्रिटेन वुड्स इंस्टीट्यूशंस. Post World War reconstruction and development in Europe. Then later its ambit was enhanced to cover all the countries. बिल्कुल सही है. तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड गलत है. कॉमन सेंस अप्लाई किया, सिंगल हैंडेडली तो नहीं होगा. अब देखो सेकंड कहाँ कहाँ पर है. सेकंड इज देयर इन बी, सेकंड इज देयर इन फर्स्ट एंड देन सेकंड इज देयर इन डी. तो आंसर क्या हो गया? 1 and 3. मुझे पता भी नहीं है अगर कि पोस्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद बना था. इवन देन आई कैन मार्क दिस एज करेक्ट बिकॉज आई नो दिस इज नॉट द ओनली इंस्टीट्यूशन विच वर्क्स फॉर द डेवलपिंग कंट्रीज फॉर रिड्यूसिंग द पॉवर्टी. सो दैट इज हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड. अब बात करते हैं दैट व्हाट आर द बिगेस्ट मिस्टेक्स, व्हाट आर सम ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक्स विच पीपल कमिट, विच पीपल वुड कमिट नाउ. स्पेशली अभी ये जो टाइम है ऑलमोस्ट 50 days, व्हाट दे आर गोइंग टू डू. The very first thing they would do is addition of new sources. In fact, you won't believe, almost on a daily basis, I have been receiving almost at least 6 to 7 messages daily from different students. That, sir, should I follow this particular source? Should I follow this source for current affairs? Should I do this particular book? Because one of my friends has said that questions are really coming from this particular book of polity. Don't do that, please. It is not going to help you. It can prove fatal. आपको करना क्या है? जो भी सोर्सेज आपने भाई पढ़े हैं पहले, बी इट एनी सोर्स, बी इट एनी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स नोट्स और एनी ऑफ द सोर्सेज, प्लीज स्टिक टू देम. डू नॉट वेवर, डू नॉट मूव लाइक अ पैंडुलम यहाँ से वहाँ. डू नॉट डू दैट बिकॉज इफ यू रिवाइज दैट इज रियली गोइंग टू हेल्प. ओवरडूइंग करंट अफेयर्स, ये तो मतलब this is a blunder which you can do. Sir, we are following PT 365. Sir, we are also following person X has come after leaving his service and he has started a coaching. He is providing the current affairs. Sir, can we follow that? Sir, I am also following monthly. भाई क्या कर रहे हो? मतलब क्या करना चाह रहे हो? एक कोई पर्टिकुलर सोर्स. पहली बात तो ये कि अगर मंथली सोर्सेज फॉलो करे आपने, मंथली करंट अफेयर्स, स्टिक टू देम. इफ यू हैव फॉलोड अ गुड सोर्स विद रिस्पेक्ट टू द मंथली करंट अफेयर्स इन द लास्ट ऑलमोस्ट 15-16 months, प्लीज स्टिक टू दैट. ट्राई टू रिवाइज इट एटलीस्ट ट्वाइस और थ्राइस. डोंट गो फॉर एन नंबर ऑफ सोर्सेज. ये नहीं किया, गो फॉर अ पर्टिकुलर कंपाइलेशन, ईदर PT 365 या फिर कुछ और कर लो. बट ये सब मत करो, ये सब ड्रामा है, कुछ नहीं है. ठीक है. नेक्स्ट इज what they would do is they would focus least on revision, and this is going to be the most important barrier as far as their qualification in prelims is concerned. भाई रिविजन जो है ना वो सबसे इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट. आप कम पढ़ो बट रिवाइज करो उसको n number of times. That is really going to help you. Then you have ignoring the PYQs. आज हम लोगों ने PYQs देखे तो हमने क्या सीखा भाई? यहाँ पर कंसेप्ट क्लैरिटी वाली क्लासेस नहीं थी या कंसेप्ट क्लैरिटी पे डिस्कशन नहीं था, बट स्टिल आई ट्राई टू टेल यू व्हाट द क्वेश्चंस आर. द वेरी ऑब्जेक्टिव इज टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर कमिंग, व्हाट इज द पर्सपेक्टिव विच इज नीडेड, किस तरीके से, व्हाट इज द माइंडसेट विच इज रिक्वायर्ड. क्या सिर्फ कॉमन सेंस के बेसिस पे मैं कई सारे क्वेश्चन सही कर सकता हूँ? हाँ, बिल्कुल कर सकते हो, बट हाँ उसके लिए भी एक बेसिक मिनिमम एप्टीट्यूड चाहिए. ठीक है. देन गोइंग फॉर मल्टीपल मॉक्स, ये सबसे बड़ी गलती है. सर अभी ये फलाना इंस्टीट्यूट ऑल इंडिया करा रहा है, सर आई हैव गॉन टू दिस पर्टिकुलर टेस्ट एंड बिकम मैड. तो ये सब मत करो. ठीक है. मतलब देखो 3-4 फॉलो करो सोर्सेज. ठीक है. फॉलो 3 in the last 1 month. You can go for, if not 3-4, you can go for at least maximum 4 to 5 full length tests in the last month. I'm saying इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है that you focus on the analysis and we'll see what to do, the analysis of the solutions. ये नहीं कि भाई हर रोज़ टेस्ट लगा रहे हैं, बस टेस्ट ही लगा रहे हैं. सर वी आर जस्ट
focusing upon the test and we are not focusing upon the analysis. That's not going to help. ठीक है? Now what you should do? First is fix your sources, non-negotiable. Make sure you create a list and you stick to that. Revision उन्हीं sources का करो जो पहले से पढ़े हैं. कुछ नया नहीं उठाना, especially for the static. ठीक है? Subject wise priority, very important. What I'm trying to say is, do not ignore the core areas. Polity, history, geography, economics. ये तो करना ही करना है. This is the most important part. And then you can basically also give your attention to environment. देना ही पड़ेगा, मतलब also क्या मतलब you'll have to read environment, IR, but do not ignore the core component. Current affairs, have a strategic view. भाई कोई मिशन है, कितना करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया है सरकार ने, इस सब चीज़ों से काम नहीं चलेगा. स्कीम देखो क्या है, मिशन क्या है, उसका मैंडेट क्या है, या कोई अगर बॉडी न्यूज़ में है तो भाई उस बॉडी का मैंडेट क्या है, उसके फंक्शंस क्या हैं और उसके मेंबर्स क्या हैं. थोड़ा स्ट्रैटेजिकली देखो करंट अफेयर्स को. डू नॉट जस्ट लुक एट द करंट अफेयर्स फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ हैविंग और जस्ट एज अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन. डोंट डू दैट. और थोड़ा बियॉन्ड, आउट ऑफ द बॉक्स सोचो. Mock test, again as I said, less is more. Focus less on the numbers and more on the quality. और quality से ज़्यादा important है solutions analysis. अभी important है कि भाई जो gaps हैं आपके knowledge में, what all gaps you have. Let's suppose कि भाई मैंने सर 50 questions किए, 50 में से सर मेरे सिर्फ 15 सही हुए, rest I was not able to attempt. ठीक है, don't be stressed because of that. For the next 35 questions, make sure that you analyze them. Analyze the solutions properly. That is going to help. ठीक है? So this is what you'll have to understand. Please remember that studying more does not correlate to the selection. It is not like कि आप 4 किताबें पढ़ लें एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए, या फिर आप 4 सोर्सेज रेफर कर लें with respect to the current affairs. So that is going to help you. Please, it is not going to help you. बिकॉज अभी क्या है, टाइम कम है और एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चंस होंगे बढ़िया क्वालिटी के. तो भाई आपको ना स्ट्रैटेजिकली चीज़ों को देखना है अभी. फॉर द नेक्स्ट 50 days, मेक श्योर दैट यू फोकस ऑन द रिविजन, हैव क्रिस्प सोर्सेज एंड गिव इनफ इम्पॉर्टेंस टू द रिविजन, बिकॉज यू नीड टू रिमेंबर बेटर. एंड फॉर दैट द रिविजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. वो विनर नहीं होता है जिसने सबसे ज़्यादा पढ़ा हो. That person is not a winner who has studied the most. The person who can recall the most, who can remember the most accurately, and that too under pressure, is the winner. For that, you'll have to give enough importance to revision. I hope it is clear. Please make sure that you give importance to revision and the other aspects. This is the Telegram channel, the IAS track. You can come and join, and you can also contact me through the admin. Over there, you have the admin ID. I would really feel good to help those serious aspirants who really want to qualify the examination. Serious aspirants, please. And this is the QR code for the Telegram channel. You can connect, and once you'll join the channel, you'll see a lot of content over there. So that's really going to help you a lot. My best wishes with all of you. If you have any doubt, feel free to contact with me through the Telegram channel. Right? All the very best, and do join the Telegram channel and do share this particular video. All the very best.